आगे देखें क्या कह रहे हैं ट्रम्प साहब। Fox News alert. Here's the president. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. कहते हैं कि हमने 3 जगह मारा, फोर्डो, नातांज और इस्फहान। और क्यों मारा? क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादियों का समर्थक ईरान, मतलब ईरान को बोल रहे हैं। अच्छा, तो अल-कायदा ईरान ने बनाया था? हाँ, मुझे पता ही नहीं था। बिन लादेन ईरान? अच्छा, ISIS ईरान ने? अच्छा, मुझे पता ही नहीं था। कमाल हो गया। और मैं सोच रहा था कि पता नहीं ये मतलब कतर के ज़रिए किसी और ने कराया होगा, पर अभी मालूम चल रहा है दुनिया में जितने संगठन हैं, वो ISIS खुरासान वाला भी है, वो सब जो है ईरान ने किया। हमें पता ही नहीं था। हमें अभी बता रहे हैं तो हमें मालूम चल रहा है। क्या कहें, गजब है साहब। चलिए। The nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General. तो साहब कहते हैं हमने बिल्कुल पूरी तरह से निस्ते नाबूद कर दिया। ये जो 3 साइट थी हमने इसको निस्ते नाबूद कर दिया। ईरान के हमने इन 3 साइट्स को ख़त्म कर दिया। अच्छा, तो कैसे कर पाए? और ईरान ने कुछ जवाब क्यों नहीं दिया? ईरान ने जवाब दिया नहीं दिया वो तो हम बता देंगे, लेकिन ये संभव कैसे हुआ जरा इसको समझिए। और बहुत तरीके से और चालाकी के साथ अमेरिका ने काम किया, कैसे समझिए। From the White House after those unprecedented strikes against Iran's nuclear enrichment sites, 3 in all in Isfahan, Fordo, and Natanz. And you mentioned the 6 bunker-busting bombs, Sean, that the president told you about. That means 3 B-2 bombers were involved in the strikes tonight because each B-2 bomber can only. 3 B-2 बॉम्बर, लेकिन चले तो 5 या 6 थे वहां से, हैं? ये 3 कैसे रह गए? अब समझिए 3 कैसे रह गए। 2 of those 15-ton bunker-busting bombs. So that means 3 B-2 bombers were involved. As we heard from Jennifer's reporting, it's likely deception was involved. Everyone woke up this morning to chatter about these 6 B-2 bombers flying west over the Pacific, refueling over Hawaii at about 11 p.m. But it's clear now that those were decoys, and that another flight of B-2s flew east, likely 3 of them. When you said 6 bunker-busting bombs were dropped, that flight that went east went to the target and annihilated Fordo, as we're hearing, likely destroying Iran's nuclear enrichment program. As you mentioned, for 11 years, President Trump has made clear. शाबाश। तो ये जो पूरी कहानी थी, इसमें तो ट्विस्ट आ गया एकदम, और बड़ा खतरनाक ट्विस्ट आया है। ट्विस्ट आपको मैप पे ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बिना उसके बाद बनेगी नहीं। ईस्ट और वेस्ट से एक साथ हमला कर दिया अमेरिका ने ईरान पे। आइए समझिए। पहले ईरान को समझ लीजिए सर, ईरान कहाँ है मैप पर। ये रहा ईरान, ये रहा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये रहा भारत। अब थोड़ा और छोटा कर देता हूँ।
B2 बॉम्बर यहाँ से उड़े अमेरिका से, ये पहुँचे ईरान के लिए, ऐसा बताया गया। ये डिसेप्शन था, दो तरफ से आए, और इधर वाले जो वेस्टर्न साइड से आए वो डिसेप्शन था, और ईस्टर्न साइड, ये ईरान का ईस्टर्न साइड है, यहाँ से आकर मार दिया धड़ाधड़ धड़ाधड़। तो ईरान समझ ही नहीं पाया, वो बेचारा यहाँ फील्डिंग लगाया था, यहाँ से हो गया काम, इधर से कैसे हो गया? ये इसकी वजह से हो गया। पाकिस्तान ने पूरी मदद करी थी ईरान को उड़ाने में, B2 बॉम्बर्स के द्वारा पाकिस्तान के बेसिस का इस्तेमाल हुआ है, और पाकिस्तान इस बात को झुठला रहा है, कह रहा नहीं हमने इस्तेमाल नहीं किया, हमारी तरफ से पाकिस्तान के जो एयर स्पेस है उसका इस्तेमाल नहीं हुआ। एयर स्पेस नहीं सर, बेस का भी इस्तेमाल हुआ है। पाकिस्तान ने ये भी झूठ चलाने की कोशिश करी कि भारत ने अपना एयर स्पेस दिया, भारत ने कोई एयर स्पेस नहीं दिया है। ये बात भारत सरकार के द्वारा PIB फैक्ट चेक ने, भारत सरकार का जो उपक्रम है उसने कह दिया कि नहीं, हमारे यहाँ से कोई भी इस ऑपरेशन से संबंधित कोई एयर ना तो स्ट्रिप, ना बेस, और ना ही कहीं भी हमारी सीमाओं में ये इनके जहाज़ आए या इसका इस्तेमाल हुआ। अब पाकिस्तान को जवाब देना कि हुआ या नहीं हुआ उनकी तरफ से। बहरहाल इतना सब कुछ हंगामा हो रहा है। इस हंगामे के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि एक और खबर आती है, और वो खबर ये आती है कि जो मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई हैं वो कहते हैं कि जो हमारे यूरेनियम एनरिच्ड स्टॉकपाइल्स थे उनको हमने पहले ही हटा दिया था, और जो सैटेलाइट इमेज है उनमें भी ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिख रही है कि ईरान का जो यूरेनियम फैसिलिटी जिसको ये बोल रहे हैं उसके बाहर ट्रक्स की लाइन लगी हुई थी, और ये लाइन 20 तारीख को लगी हुई थी, 19 और 20 को, और वहाँ से उन्होंने अपना पूरा सामान हटा लिया। अब बड़ा सवाल ये उठता है, क्या ये सारा गेम दुनिया को दिखाने के लिए हो रहा है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया? पहले ही बता दिया कि हम यहाँ हमला करेंगे तो अपना सामान निकाल लो। सामान निकाल रहे थे तब क्यों नहीं हमला कर दिया? तो और अच्छा था, फिर तो ओपन में था। भाई आप तो अभी खड़े खड़े प्लेन्स को मार दे रहे हो ना अपने ड्रोन से, इससे उससे, दुनिया जान से, मशीन मिसाइलों से और रॉकेट से। तो वो जब जा रहे थे, भाई आपने ही तो वीडियो जारी किए हैं इजराइल ने और अमेरिका ने कि देखो यहाँ से मिसाइल लेकर जा रहे थे, हमने इसको ट्रक को उड़ा दिया, हमने इसके डिफेंस मिनिस्टर को उड़ा दिया, हमने फलाने को उड़ा दिया, हमने ठिकाने को उड़ा दिया, हमने इनके जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं उनको मार दिया, हमारे पास प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन थी। तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी क्या कि खुले में आसमान के नीचे से जा रहे हैं पूरे स्टॉक पाइल लेकर, और इतनी लंबी लाइन लगी हो तो सबको दिख रहा है, वो इमेजेस तो सबके पास में। तो उसको क्यों नहीं उड़ाया आपने? क्या कोई सेटिंग वाली बात है? कारण क्या नहीं उड़ाने का? सवाल बहुत सारे हैं सर, सवाल उठेंगे। खैर, जहाँ हमला करना बताया गया है फोर्डो में, वहाँ ईरान का टेलीविजन क्या कह रहा है जरा उसको देख लें। تنها دودی که دیده میشه در آسمان نزدیک به فوردو دودی است که از سمت مقابل سایت هسته فوردو جایی که به نظر میرسه कहते फोर्डो में बस ये एक ही तो बम गिरा है, बोले कुछ हुआ ही नहीं है, यहाँ कुछ दिक्कत नहीं है। अमेरिका कह रहा था कि इस जगह पर जो है रेडिएशन हो गया, लीक हो गया, पर वहाँ तो लाइव खड़ा होके IRN ने जो उनका न्यूज़ है वो रिपोर्ट कर रहा है, और वो कह रहा है कि यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो बम गिरा, लेकिन जो फोर्डो का जो न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, कोई लीकेजेस नहीं है। तो ये खड़ा होकर कैसे रिपोर्ट कर सकता है? और वो फिर कैसे कहते कि ये रेडिएशन लीक हो गए? रेडिएशन लीक हो जाता तो ये पत्रकार साहब वहाँ खड़े रह पाते ना? सड़कें खाली हैं, इसमें कोई तो राय नहीं है कि बढ़िया तरह से बॉम्बिंग की गई है, सड़कें खाली हैं, कोई दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। प्रॉब्ली हो सकता है संडे की वजह से भी ना हो, भीड़ ना हो, लेकिन ये बात पक्की है कि सड़कें खाली है। ये बात भी है कि बम गिरा है, वो दिख भी रहा है, और ये बात भी पक्की है कि न्यूक्लियर रेडिएशन लीक नहीं हुआ, वरना आदमी वहाँ खड़ा होकर रिपोर्टिंग नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको समझनी होंगी। देखिए, वीडियो ही अपने आप में सब कुछ बता देगा। बहुत झूठ चल रहा है सर यहाँ पर, भयंकर, दोनों तरफ से। AI वीडियोज़ की बाढ़ है, पर इतने अच्छे AI वीडियोज़ को पहचानना मुश्किल हो जाता है कि वाकई में AI है या असली है। आप लोगों को समझ में आया क्या? मैं बताता हूँ, नहीं आया। मैंने दूसरा वीडियो जो दिखाया था B2 बॉम्बर का, वो जो ऐसे आया और वो उड़ गया, वो असली वीडियो थोड़ी था, असली जैसा लग रहा है। ठीक है ना? तो ऐसे तमाम सारे वीडियोस, इतने सुंदर और अच्छे वीडियो बने हुए हैं कि हम जैसा व्यक्ति भी नहीं पकड़ पाता उनको, बहुत मुश्किल होती है पकड़ने में। ईरान कह रहा है कि हमारे यहाँ कोई नुकसान हुआ ही नहीं है, मान लेते हैं, रेडिएशन नहीं है, ठीक है। अमेरिका कह रहा है हमने इनको बिल्कुल पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। इस सब के बीच में कुछ और खबर आती है, और वो खबर ये आती है ईरान में महसूस किए गए भूकंप के झटके 4.4 मापी गई तीव्रता। अब भाई बस कोई ये समझा दो, ये जब से जो भूकंप आ रहे हैं ये कम वक्त 4 से लेके 4.4 ही क्यों आ रहे हैं? 4.2, 4.3, 4.1, ये क्या चल रहा है? अब तक ये पाकिस्तान में हो रहा था, अब ईरान में भी होने लगा। बाबू कुछ तो नुकसान हुआ है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। आप मानो ना मानो, कम से कम धरती तो यही बता रही कि हाँ कुछ तो नुकसान हुआ है, राइट? बाकी आपकी इच्छा है। आप लोगों को क्या लगता है, नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? मुझे लगता है कि हाँ, हो सकता है पूरे नहीं गए हो, लेकिन कुछ नुकसान तो हुआ है, पक्की बात है, राइट? चलिए अब आगे चलते हैं।
और जो इजराइल जो फायर कर रहा है और ईरान जो पलट के फायर कर रहा है, दोनों में बहुत फ़र्क है। और फ़र्क क्या है, उस फ़र्क को इस वीडियो के माध्यम से आप देखें, समझें। इजराइल की तरफ मिसाइल फायर करता है तो अब देखिए, यहाँ से ईरान ने मिसाइल फायर करी और इसको इंटरसेप्ट करने के लिए सबसे पहले तो यहीं पर समुद्र में जो इनके जहाज़ खड़े हुए हैं अमेरिका के, यही इंटरसेप्ट कर देंगे यहाँ से। चलिए, ये इंटरसेप्ट नहीं कर पाए तो अब आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से इंटरसेप्ट हो जाएगा, ठीक, खाड़ी देशों से। इसके आगे चलेंगे तो जॉर्डन से इंटरसेप्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो अमेरिकी सेना ने बेस बना रखे तमाम सारे, वो इंटरसेप्ट कर देंगे। तमाम सारे, इतने सारे इंटरसेप्ट करने के बाद ये इजराइल पहुंच रहा है। सोचिए, लाइन से सर, और यहाँ मेडिटेरेनियन से भी इसको इंटरसेप्ट कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर ईरान इजराइल को मारने में कामयाब हो रहा है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतनी सारी जगह इंटरसेप्शन करना, सोचिए, जगह जगह पर। और एक तरफ अब एक चीज़ और इसमें बड़ी मायने रखती है, वो ये मायने रखती है कि ये जो मिसाइलें हैं ये ईरान की खुद की बनाई हुई हैं। और इधर आप इनको जो इंटरसेप्शन जो करने को मिल रहे हैं वो यूके से लेकर तमाम सारी टेक्नोलॉजी आ गई। पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी ने को इस्तेमाल किया जा रहा है इनकी मिसाइलों को रोकने के लिए, फिर भी नहीं रोक पा रहे हैं। तो ये ईरान के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। हम इसको यही कहेंगे कि आपने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। आपके जहाज़ खड़े हुए हैं, युद्धपोत खड़े हैं आपके, आप हर तरह से रोक रहे हो, आपके बेसेस हैं, उन तमाम सारे बेस से आप फायरिंग करके रोक रहे हो, लेकिन इसके बावजूद नहीं रोक पा रहे। इसका मतलब ईरान की सुपीरियरिटी तो है, खुद की बनाई हुई मिसाइल, और आपकी दूसरी तरफ पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी। लड़ाई किस किस के बीच है। चलिए, वो तो हो गया कि साहब रात को जो उन्होंने बॉम्बिंग कर दी। फिर क्या हुआ, फिर सुबह इजराइल के एरोप्लेन्स ने अल गदीर बेस यज़द ईरान पे फिर हमला कर दिया। मतलब अभी चैन नहीं पड़ा। एक बात तो पक्की है, इतना पैसा किसी के पास फालतू नहीं है कि साहब ये पहाड़ों में, बंजर पहाड़ों में जाके बम मारे। यहाँ कुछ ना कुछ तो है जिसको बम मारा है उसने, और वो कुछ ना कुछ क्या है, वो कुछ ना कुछ वही है, न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी। तो ये सिचुएशन है। कमाल है। क्या आपको लगता है कोई पहाड़ों में फालतू के बम मारेगा, इतनी महंगी मिसाइलें मारेगा? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं होगा। चलिए, तो ये तो इजराइल ने मारा, ईरान कौन सा छोड़ देगा? तो IRGC के जो ट्रेनिंग कैंप है उस पर भी, गैरिसन ट्रेनिंग, उस पर भी हमला किया इजराइल ने, और ये भी यज़द के पास ही है। इस नज़ारे को भी देख लीजिए। तो ये तो समझ में आता है, पहाड़ों में कोई नहीं मारता, पहाड़ों में मार रहा तो वहाँ पर भी कुछ होगा। ठीक है, तो IRGC का यहाँ पर जो है बेस है, इस बेस को भी हिला दिया, ट्रेनिंग कैंप, यहाँ पर भी हमला कर दिया इजराइल ने। इजराइल ने इमाम हुसैन क्षेत्र में, यज़द का, ये भी यज़द का ही क्षेत्र है, वहाँ भी हमला किया। भाई जमकर, मतलब कल रात के B-2 बॉम्बर के अलावा हमला है, ये ज़बरदस्त हमला किया है। तो इतना सारा हमला इजराइल ने कर दिया। ईरान चुप बैठा क्या? ना, ईरान ने भी पलटवार किया, और इतना ज़बरदस्त पलटवार किया कि पूछिए मत। बिल्कुल खंडर बना दिया भैया। ये ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स का कमाल है। तेल अवीव खंडर कर दिया एक तरह से, ये कहें तो गलत नहीं हुआ। 30 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई हैं ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर, और जो है लोग अब जो है घर छोड़कर भाग रहे हैं। क्या वाकई में भाग रहे हैं? चलिए देखते हैं क्यों भागेंगे, किस लिए भागेंगे, वो भी देखेंगे। पर इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर भी धमाका किया, ईरान ने वहाँ पर भी हमला किया। मैं आपके पास लौट कर आऊंगी, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर, इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर धमाका हुआ है। ईरान ने एयरपोर्ट पर मिसाइल अटैक किया है। हमले के बाद इस इलाके में ब्लैकआउट। विदेशी मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको इस युद्ध से जुड़ी हुई बता रहे हैं। इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर धमाका, ईरान ने इस एयरपोर्ट पर मिसाइल अटैक किया है, जिसके बाद यहां पर ब्लैकआउट हुआ है इस पूरे इलाके में। हालांकि ईरान पहले ही इस हमले को लेकर जानकारी दे रहा था, और अब ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है विदेशी मीडिया के हवाले से कि इस एयरपोर्ट को निशाना बनाया है ईरान ने, इस एयरपोर्ट पर मिसाइल अटैक किया गया है। आशीष, तो भैया ना तो ईरान रुक रहा और ना इजराइल। अब इजराइल इतने दिनों से दावे कर रहा था, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने सारे इनकी कैपेसिटी खत्म कर दी। अमेरिका भी यही दावा कर रहा था, फिर कैसे मार ले रहा हो? और देखें जरा इजराइल में कैसी तबाही है, उसको भी देखें। All of them, all.
הרצל הלכה בקיוסק של ג'וקר. הלך על הרצל, על הממ"ד. וואו, איזה מאזן, נס משמיים, ואנחנו פה. בוא תראה, פה! פה, בהרצל! तो ये इजराइल का हाल है। अब ईरान भी जवाब तो देगा, ऐसे फिर तो नहीं जाएगा, कुछ तो जवाब देगा। इजराइल ने सोचा नहीं था कि इतना ज़बरदस्त जवाब होगा। खैर, www.nitinshukla.com पर आपको जाना है और वहाँ जाकर QR कोड को स्कैन कीजिएगा। QR कोड को स्कैन करने के बाद में अमाउंट भरिएगा। अमाउंट भरने के बाद में ऐड नोट ढूंढिएगा कहाँ पर है, उसी जगह मिलेगा। अमाउंट के ऊपर नीचे लिखा होगा, कहीं नीचे होता है अमाउंट की, उसमें जाकर अपना नंबर नाम लिखिएगा, सेंड कर दीजिएगा। सोशल मीडिया के तमाम प्रोफाइल इनको ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल को इन बटन को दबाकर दोनों चैनल से जुड़ जाएगा। पेमेंट और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें।